Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Are you excited to hear from the Lord this morning? क्या आप उत्साहित हैं परमेश्वर से सुनने के लिए आज की सुबह? I can't see excitement in your voices. मैं आपकी आवाजों में उत्साहिता को नहीं सुन पा रहा हूँ. Hallelujah. हालेलुया. The Lord is the reason for our joy this morning. और परमेश्वर हमारे आनंद का कारण है आज की सुबह. All the kingdom kids, they can go for their Sunday school. और किंगडम किड्स अपने संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं. We are so delighted to see them grow and enjoying in the Sunday school. और हम बहुत ही आनंदित होते हैं उन्हें बढ़ता देख और अपने संडे स्कूल में सीखता देख. Let's bow our head in prayer. आए हम अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में. Father, this morning we know that you love us and you're with us. और प्रभु हम आज की सुबह जानते हैं आप हमारे साथ हैं और हमसे प्रेम करते हैं. We want to say thank you for a new identity, a new belonging and a position that we have received in Christ Jesus. धन्यवाद उस नई पहचान के लिए, उस प्रभु उस दर्जे के लिए जो हमने यीशु मसीह में प्राप्त किया है. We know that we are never alone and you always are with us, और Father. हम जानते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं और तू हमेशा हमारे साथ है. Father, your word always brings us edification and growth, Father. प्रभु तेरा वचन हमेशा हमारे लिए एक बढ़ोतरी की बात को लेकर आता है. This morning we wait for a new revelation from you, Father. आज की सुबह हम एक नए प्रकाशन का इंतजार करते हैं. Help us to worship you with our listening this morning. और हमारी मदद करे कि हम तुझे सुनकर तुझे आराधना दे सकें आज की सुबह. In Jesus' name we pray, amen. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. Amen. आमीन. So the word of the Lord has been shaping us to the book of James. परमेश्वर का वचन हमें याकूब की पुस्तक के द्वारा जो है बनाता है आज की सुबह. And the book of James is not only just theory but practical lives or practical application that we can apply in our life. और जो याकूब की पुस्तक है वह सिर्फ लिखने की बातें नहीं है परंतु जीवन में लागू होने वाली बातें हैं जो हमारे जीवन को एक आकार देती हैं. When we were studying in previous chapters to the book of James, we saw how we need to memorize or how we need to handle our trials, our temptations. और जब हम याकूब की पुस्तक में पहले सीख रहे तो हमने इस बात को सीखा कि कैसे हम वचन को याद करें और कैसे हम अपनी परीक्षाओं का सामना कर सकें. And when we do that application, we will see a victory in our trials, temptation and different area of our lives. और जब हम उस बात को लागू करते हैं अपने जीवन में हम देखते हैं उस विजय को हमारे जीवन के हर एक कोने पर. The world will never forget the year of 1914. और जो संसार है वह कभी भी 1940 को शायद नहीं भूल सकता है. It was the beginning of world's greatest sorrow. और 1914 माफ कीजिएगा और यह संसार के सबसे बड़े दुख का एक शुरुआत थी. It was the beginning of the world war. और वह थी एक विश्व युद्ध की जो शुरुआत वहां पर हुई थी. The World War I began in 1914. और जो विश्व युद्ध था वो 1914 में शुरू हुआ था. It started with the assassination of Archduke Franz. और यह शुरू हुआ था एक हत्या के द्वारा जो थी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की. He belonged to Austria. और वह ऑस्ट्रिया एक देश है वहां से थे. And after that assassination there was a great world war that broke out into the world. और फिर उस हत्या के बाद एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध था जिसकी शुरुआत हुई. And this world war lasted till 1918. और यह जो विश्व युद्ध था ये 1918 तक चलता रहा. A 4-year of conflict. और 4 साल का युद्ध. And thanks to all the military technologies, it ended with so great devastation and destruction. और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सारी उस सेना की तैयारियों का कि एक बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा तबाही के साथ इसका अंत हुआ. And by the time the war ended, more than 2.6 crore people, more than 2.6 crore soldiers were dead. और इससे पहले कि यह युद्ध खत्म होता वहाँ पर 2.60 करोड़ जो सिपाही थे लोग थे उन्होंने अपनी जान को गवा दिया था. A great time of destruction, a great time of pain for the world. और एक बहुत ही ज़्यादा तबाही का समय, एक बहुत ही बड़ा दुख का समय संसार के लिए वहाँ था. This is always where wars and fight happens, it brings to us. और यह हमेशा ऐसा होता है कि जब भी
जो लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ हम तक लाई जाती हैं। War is an inevitable aspect of our life. और एक यह जो लड़ाई युद्ध जो होता है हमारे जीवन का एक ऐसी जगह है जिससे हम बच कर नहीं जा सकते। We can't get away from it. हम इससे दूर नहीं हो सकते हैं। It's in our community. और यह हमारे आसपास हमेशा रहती It's है। in the evening news. और यह शाम की खबरों में रहती It's है। in our homes. और यह हमारे घर के अंदर And होती it's in है। our lives. और यह हमारे जीवन में रहता है। We see wars and fights happening all around. और हम देखते हैं युद्ध जो होता है कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। The brother is against brother. जो भाई है भाई के खिलाफ है। Mother is against the son. और जो माता है वह बेटे के खिलाफ Husband है। is against wife. पति जो है पत्नी के खिलाफ है। There is fight and wars in workplaces. और लड़ाई और युद्ध चलते रहते हैं कार्यों की जगहों पर। The church members are against the pastors. और जो कलीसिया है वह पासबानों के खिलाफ होती है। And the members are against members. और जो आपस में कलीसिया एक दूसरे के खिलाफ होती है। Wars and fights are an inevitable or unavoidable aspect of our life. और यह जो युद्ध है यह हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम कभी बचकर निकल नहीं सकते Just हैं। imagine for a thought that two brothers that grew together, played on cycle and shared their ice cream, 40 years later they are fighting for a piece of land. और आप इस बात को बस सोच कर देखें कि वह दो भाई जो साथ में बड़े हुए पैदा हुए उन्होंने एक ही साइकिल चलाई एक ही आइसक्रीम खाई वह 40 वर्षों बाद एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे होते हैं। Imagine the pain the parents must go through when they see their two sons fighting in court for a piece of land. और आप उस दर्द के बारे में सोचिए जो उनके माता पिता जिससे होकर गुजरते हैं जब उनके बच्चे एक जमीन के लिए कोर्ट में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। There are fights and there are wars all around us. और ऐसे युद्ध ऐसी लड़ाई हर जगह है हमारे आसपास। This morning I want us to understand the difference between disagreement and wars and fights. और आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम समझे क्या एक फर्क होता है किसी बात में नोक जोक होने में या किसी बात में लड़ाई होने में। A disagreement is a healthy expression of different opinions. और यह जो डिसएग्रीमेंट होता है नोक जोक जो होती है वह एक बहुत ही स्वस्थ रूप से दो विचारों का ना मिलना होता है। Disagreement focuses on solving the issue. और यह जो डिसएग्रीमेंट होता है नोक जोक इसका जो केंद्र होता है वो यह होता है कि हम इसका सुझाव निकाल सकें इसका हल निकाल सकें। At the end of disagreement, there is strengthening of the relationship, there is wholeness. और डिसएग्रीमेंट के एंड में वहाँ पर रिश्ते और मजबूत होते हैं और वहाँ पर एक संपूर्णता को आप देख सकते हैं। But where there are wars and fights, there is unhealthy attack on individuals. और जब वहाँ पर युद्ध या लड़ाई होती है वहाँ पर एक व्यक्ति के ऊपर जो होता है हमला हो रहा होता है। The wars and fight focuses only on winning personally. और जो लड़ाई होती है वहाँ एक व्यक्तिगत रूप से जीतने के ऊपर ध्यान देती है। The wars and fights leads to damaging relationship. और यह जो लड़ाई होती है यह आगे चलकर आपके रिश्तों को खराब करती है। And it leads to hurt and pain at the end. और वह आगे चलकर दर्द और दुख को ही चोट को ही उत्पन्न करती है। So we can have disagreement with one another. तो हम एक दूसरे की बात में हम एक दूसरे की बात को समझौता असहमति We can have disagreement with one another. हम एक दूसरे की बात से असहमत हो सकते हैं। For example, me and Aditya are preparing for Christmas. और इसका अर्थ है कि मैं और अभिषेक भाई क्रिसमस की तैयारी करते हैं। And I say that I want to give congregation dal and chawal. और मैं कहता हूँ कि मुझे कांग्रीगेशन को दाल चावल देनी But है। Aditya says I want to give biryani. और पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे बिरयानी देनी है। Now you will support Aditya, I know. आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे मुझे पता है। Why? Because the most important aspect is budget. क्योंकि जो सबसे जरूरी बात है वह है बजट। But now if we are having disagreement, we will work together to solve the issue. और अगर हमारे बीच में असहमति है तो हम एक साथ मिलकर उस परेशानी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। But if we are fighting and warring against one another, पर अगर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, no matter what he says, my point is always gonna be right.
और उससे कोई मतलब नहीं पता है कि क्या सामने वाला व्यक्ति कहता है, And at मेरी the बात हमेशा सही end, होगी, and at the end we are going to hurt one another. और उसके अंत में हम एक दूसरे को बहुत चोट पहुंचाने So वाले there's हैं। there's a difference between disagreement and wars and fights. तो यहाँ पर यह अंतर है असहमति में और लड़ाई में। But James today wants to address the second thing, which is wars and fights. और आज की सुबह याकूब जो है वह दूसरी बात पर ध्यान देना चाहता है, जो है लड़ाई। He is going to tell us about the source and the solution of all the wars and fights. और वह हमें उन सारी युद्ध और सारी लड़ाइयों की जो शुरुआत होती है उसके बारे में बताने वाला है। If we can categorize all the wars and fights that are happening in the world, it categorizes into three categories. अगर हम इन सब बातों को एक श्रेणी में लिखें, जितने भी युद्ध इस संसार में जितने भी प्रकार के युद्ध होते हैं वह तीन प्रकार से हो सकते हैं। War with each other, पहला है युद्ध एक दूसरे के साथ, war within ourselves, एक युद्ध जो हमारे अंदर चलता है, and war with God. और एक युद्ध जो परमेश्वर से हम लड़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We believe in reach up, reach in, and reach out. हम विश्वास करते हैं कि ऊपर की तरफ बढ़ना है, अंदर की तरफ बढ़ना है और औरों की तरफ बढ़ना This है। war is from inside above. और यह जो लड़ाई है ये अंदरूनी रूप से ऊपर की ओर है। So if there is a war within, तो अगर वहां पर एक अंदरूनी रूप से लड़ाई है there will be a war outside. तो वहां पर बाहरी रूप से एक And लड़ाई होगी, ultimately there will be a war above. और वहां पर एक ऊपरी रूप से भी लड़ाई होगी। Three types of wars. तीन प्रकार की लड़ाई, War within, आपके अंदर, war with one another, एक दूसरे के and war साथ with God. और परमेश्वर के साथ। Hallelujah. हालेलुया। In Psalms 133 verse 1, David says, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. और भजन संहिता उसके 133 उसका 1 में दाऊद कहता है, देखो क्या ही भली और मनमोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। So the word of God encourages us to live in unity. तो परमेश्वर का वचन हमें एकता में जीने को उत्साहित करता है। But when we look all around, there is nothing like that. परंतु जब हम आसपास देखते हैं वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। Even if we look in Bible, there is something that is not found like that. और अगर हम बाइबल में भी देखें तो हमें शायद नहीं मिलेगा कहीं पे भी जहां ऐसा हुआ हो। Lot quarreled against Abraham. और लॉट जो था उसने लूत ने अब्राहम के खिलाफ बहुत बड़बड़ की। Absalom created a war with his father David. अबसलोम ने अपने पिता दाऊद के खिलाफ एक युद्ध को जारी किया। The disciples had argument who is going to be the greatest in the kingdom. और जो चेले थे उनके बीच में यह एक बात चली कि हम में से कौन ज्यादा बड़ा होगा उस राज्य में। Paul and Barnabas had argument over disciple Mark. और पौलुस और बरनबास ने के बीच में भी एक असहमति की बात हुई। In New Testament church there are wars and fights. और नई नियम की कलीसियाओं में वहां पर युद्ध और लड़ाइयां होती हैं। In the church of Corinth, people were suing each other and dragging them to courts. और कोरिन्थ की कलीसिया में और एक और कलीसिया में लोग आपस में एक दूसरे को कोर्ट लेके जा रहे थे, कचहरी लेके जा रहे थे, खींच रहे थे, घसीट रहे थे। In the church of Philippi, the women were not able to get along together. और जो फिलिपाई की कलीसिया थी वहां पर महिलाएं आपस में एक दूसरे के साथ बन नहीं पा रही थी उनकी। So there are wars and fights all around. तो वहां पर यह लड़ाइयां यह युद्ध हैं हर कहीं। And then James in his epistle is classifying the wars. और फिर याकूब जो है वह अपनी पत्री में इन सारी युद्धों को श्रेणी में रखता है। He says there is a war between two classes of people. वहां पर जो है दो वर्ग के बीच में एक लड़ाई हो रही है, The rich and poor. जो अमीर और गरीब है। There is an ongoing war in the church. और कलीसिया के अंदर एक ऐसा युद्ध चल रहा है। In chapter 5, there is an employment war where is a fight between the employer and the employee. और 5वें अध्याय में वहां पर एक मालिक और उसके कार्य करने वाले के बीच में एक युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। In chapter 3, he says that people are fighting to be the teachers. और वो 3रे अध्याय में बता रहा है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं शिक्षक, एक सिखाने वाले बनने के लिए। And then there are personal wars. और फिर वहां पर व्यक्तिगत लड़ाइयां हैं। We are always at personal war with someone. और हम कभी हमेशा किसी ना किसी के साथ एक व्यक्तिगत लड़ाई में रहते हैं। Today James is going to address the elephant in the room. और आज के दिन याकूब जो है वह एलिफेंट इन द रूम, कमरे में जो हाथी है उसको पहचानने वाला है। So there are wars all around.
तो वहाँ पर हम सब के आसपास हर जगह एक युद्ध है. You read in chapter 4 at the end, verse 11 and 12, people are speaking evil against one another. आप अगर पढ़ेंगे याकूब में तो वहाँ पर लोग एक दूसरे के विरुद्ध गलत बातों को बोल रहे हैं. So how can we be so easily at war? तो कैसे हम इतनी आसानी से इस युद्धों में पड़ जाते हैं, लड़ाइयों में पड़ जाते हैं? What is the reason of all these fights and wars? क्या है जो वजह कि हम इन सब लड़ाइयों में रहते हैं? This morning I'm going to give you the 3 sources from the book of James. आज की सुबह मैं आपको वह 3 जड़ें देना चाहता हूँ याकूब की पुस्तक से. If you can recognize these 3 sources, you will know that these always leads to fights and wars. अगर आप इन 3 जड़ों को पहचान पाते हैं, आप इस बात को समझिए कि ये हमेशा लड़ाई को उत्पन्न करता है. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you investigate your life? क्या आप अपने जीवन को टटोलने के लिए Are you तैयार ready to हैं? investigate the world? और क्या आप संसार को टटोलने के लिए तैयार हैं? The God will give us an answer. परमेश्वर आज हमें एक उत्तर देने वाला The है. first reason is selfish desires. वह पहला जो कारण है वह है स्वयं के जो इच्छाएं होती हैं. Let's read James 4 verse 1 to 3. आए हम पढ़ें याकूब उसका 4:1 से 3 तक. Yes. तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसीलिए तुम हत्या करते हो. तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़े और लड़ते हो. तुम्हें इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं. Amen. The word of the Lord is living and powerful. परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थ्यशाली The है. number one reason why there are wars and fights is because of the selfish desire in people. और जो पहली जो बात है कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ हैं वह है हमारी स्वयं की इच्छाएं जो होती हैं. It is a desire to satisfy the pleasure of our own life. और यह इच्छाएं होती हैं उन बातों की कि हम अपने जीवन की उन सुखों को पालें. It is the desire to run after power, possession or someone. और यह वह इच्छा होती है कि हम उस शक्ति के पीछे भागें या उस औहदे के पीछे भागें. And this is the selfish desire that always will lead to wars and fight between one another. और यह वह स्व इच्छा ही होती है जो अपनी स्वयं की इच्छाएं होती हैं जो एक दूसरे के बीच में लड़ाइयों को उत्पन्न करती हैं. And if we see carefully, he says it is not your desires that war within yourself. और क्या ये वह अगर आप ध्यान से देखिए कहते हैं कि क्या ये तुम्हारी स्वयं की इच्छाएं नहीं है कि तुम खुद से भी एक लड़ाई में हो. So there is a war that is happening within your heart. तो एक वहां पर युद्ध है जो आपके हृदय के अंदर चलता है. And because of this war that is happening in your heart, all the other fights are happening outside. और क्योंकि यह आपके हृदय के अंदर एक युद्ध चल रहा है, आपके हृदय के बाहर भी एक युद्ध चल रहा है हर जगह पर. This war in heart causes all the fights in church and everywhere. और यह जो युद्ध है हमारे हृदय में, यह कलीसिया में, यह हर जगह में आपके जीवन पर इन युद्धों को उत्पन्न करता है. So the key is selfishness. और यह इसकी जो चाबी है वह है स्वयं केंद्रित होना. What is selfishness? क्या है स्वयं केंद्रित होना? When we choose preferences over principles. और जब हम अपनी इच्छाओं को चुनते हैं अपने सिद्धांतों से बढ़कर. How many of you were blessed last Sunday by the sermon? और पिछले रविवार के प्रचार से कितने लोग आशीषित थे? What a wonderful revelation. कितना एक अद्भुत प्रकाशन था. That the principles and preferences, how they change our life. कि कैसे आपकी इच्छाएं और आपके सिद्धांत आपके जीवन को बदलते हैं. When we are selfish, we'll always choose the preference. जब हम स्वयं केंद्रित होते हैं हम हमेशा अपनी इच्छाओं को चुनते हैं. What I like, what I dislike. क्या मुझे पसंद है, क्या मुझे नापसंद है. Which person I like, which person I don't like. कौन सा व्यक्ति मुझे पसंद है, कौन सा व्यक्ति मुझे नहीं पसंद And है. we reject in our selfishness the principles of God. और फिर हम अपने
आप में परमेश्वर के सिद्धांतों को नकारा करते हैं। And because we reject the principles of God, there is wars and fights. और क्योंकि हम परमेश्वर के सिद्धांतों को नकारा करते हैं, वहां पर जो है लड़ाइयाँ और युद्ध उत्पन्न होते हैं। These selfish desires lead into wrong actions and decisions. और यहाँ जो हमारी इच्छाएं होती हैं, यही हमें गलत कार्यों की ओर लेकर जाती हैं। James says that because of these desires you are lusting, there is jealousy, you murder and you fight. और याकूब इस बात को बताता है कि इन्हीं इच्छाओं की वजह से तुम्हारे बीच में जलन है, तुम्हारे अंदर वासना है और तुम एक दूसरे से ढा करते हो। Selfishness leads us in hating our brothers. और जो यह स्वयं केंद्रता है, यह हमें आगे चलकर अपने ही भाई से ईर्ष्या करने को मजबूर कर देती है। If we ever find hating someone, अगर हम कभी भी एक व्यक्ति को नफरत करते हुए अपने आप को पाते हैं, always evaluate, is any selfishness in me that is found? और आप हमेशा इस बात को सोचें कि क्या वहां पर कोई स्वयं केंद्रता है मेरे अंदर जो मुझे मिलती है। Because 99.9% that is the reason that is producing hate among the brothers. क्योंकि पूरा 100% आप इस बात को समझे कि वही एक वजह है कि आपके अंदर यह लड़ाई को उत्पन्न या इस ईर्ष्या को उत्पन्न किया जा रहा है। James says you murder and you fight. और याकूब कहता है तुम लड़ते हो और हत्या करते हो। You are not talking to your brother in church. आप अपने भाई से बात नहीं कर रहे हैं The कलीसिया moment में, they come, you turn another way, और जिस क्षण वह आ रहे हैं आप दूसरी तरफ मुड़ जा रहे as if हैं, they never existed. जैसे वह कभी भी वहां पर थे ही नहीं। But James is saying you are murder. याकूब कहता है तुमने उस समय में हत्या की है You are a murderer, and because of that, you are doing fights and wars. और तुम एक हत्यारे हो और इस वजह से तुम लड़ाई और झगड़े करते हो। But you can say that I just ignore. How can I murder this person? आप कहेंगे मैंने तो सिर्फ इस व्यक्ति को अनदेखा किया है, कैसे मैंने इसकी हत्या कर दी। Because there is hate inside, it leads to murder. क्योंकि वहां पर जो है घृणता है, एक नफरत है अंदर, वहां उसको मृत्यु की ओर लेकर जाती A है। murder of unity that God wants to set in church. और एक एकता की हत्या कलीसिया में जो परमेश्वर चाहता है होनी चाहिए। Remember the principle of unity? आपको याद है सिद्धांत एकता का? God wants to establish that in His kingdom. परमेश्वर चाहता है कि वह उसके राज्य में हो। In 1 John chapter 3 verse 15 it says, whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. और पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 15वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, Whoever hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. और जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि वह किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। You might not murder them physically, आपने शायद उन्हें शरीर से उनकी हत्या नहीं की, but in spiritually you are murdering them. परंतु आत्मिक रूप से आप उनकी हत्या करते हैं। The mathematics of God is different. परमेश्वर की गणित थोड़ी अलग है। Welcome to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत है। So here is an incomplete list of things we know we shouldn't do. और यहाँ पर एक पूरी जो सूची जो ये पूरी नहीं हुई है उन बातों की जो हमें नहीं करनी चाहिए। But because of our selfishness, we do in wars and fights. परंतु हमारी स्वयं केंद्रिता की वजह से हम इन लड़ाई और झगड़ों पे पड़ते हैं। So when we are fighting with one another, तो जब हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, we fail to see our own sin. हम सबसे पहले अपना पाप नहीं देख पाते हैं। We always see the fault of the others. हम दूसरों का गलती वहां पर देखते He हैं। didn't come and speak to me. वह नहीं आया मुझसे बात करने के Why लिए, should I go and speak to him? मैं क्यों जाऊं उससे बात करने के लिए। When I went to his home, जब मैं उसके घर गया, he didn't speak to me properly. उसने मुझसे सही से बात नहीं Then करी, why should I speak to him? तो मैं क्यों उससे बात करूं। But we fail to see the sin that is creeping in us. परंतु हम इस बात को देखने में असमर्थ रहते हैं, वह पाप जो हमारे अंदर चल रहा है। We are so quick to see the speck in others' eyes, but not the log in our own eyes. हम दूसरे की आंख का तिनका देख लेते हैं, परंतु अपनी आंख की लाठी को नहीं पहचान पाते हैं। The second is blame shifting. जो
दूसरा है वह है एक दूसरे पर दोष लगाना। When we are warring and fighting, there is always blame shifting. और जब हम लड़ाई कर रहे होते हैं जो एक हम समाधान ढूंढते हैं वह है दोष लगाना। It started with the Garden of Eden. वह अदन की वाटिका से शुरू It's हुआ still continuing today. और अभी भी चल रहा है। Nobody wants to take the blame. कोई भी अपने ऊपर उस दोष को नहीं लेना चाहता है। So for me, Aditya is always wrong. और मेरे लिए आदित्य हमेशा गलत है। No matter if I came late, Aditya is wrong. और मैं शायद लेट आया हूं पर आदित्य गलत है। It's very hard to accept our own faults and failures. और यह बहुत ही मुश्किल होता है हमारी अपनी नाकामयाबियों को देखना। And it leads to wars and fights. और फिर आगे चलकर यह लड़ाइयों को उत्पन्न करता है। The third thing is assign hidden motives. और तीसरी जो है वह है छुपे हुए अपने ख्याल। If there is any hidden motive in you, it will always lead to fights. अगर आपकी कोई छुपी हुई एक बात है उस किसी भी परिस्थिति में जिससे आपका फायदा हो रहा हो उसमें हमेशा लड़ाई उत्पन्न होती है। If secretly you want to get promotion, अगर आपको एकदम चुपके से अपना प्रमोशन चाहिए, it is a hidden motive. यह एक छुपी हुई Someone बात है। came in your workplace who is so well to do. और कोई आपके कार्यस्थल में आया जो बहुत ही अच्छा कार्य करता है And that person by chance came 5 minutes late. और वह व्यक्ति कभी गलती से शायद 5 मिनट लेट हो गया हो। You go to the boss and tell, sir, he came 5 minutes late. और आप सबसे पहले बॉस के पास जाएंगे और कहेंगे सर ये 5 मिनट लेट आया। Same works in church. और ऐसा ही कलीसिया में होता Our है। hidden motives always lead to fights. हमारी जो यह छुपी हुई इच्छाएं होती हैं यह हमेशा लड़ाइयों को उत्पन्न करती हैं। The fourth thing is very big. और जो चौथी बात है वह बहुत बड़ी है। We make assumptions. वह है कि हम पहले से अपने मन में बात को सोच लेते हैं। We always have assumptions in our head about others. और हमारे मन में पहले से दूसरों के बारे में जो होता है एक ख्याल रहता है। And it always leads to fights. और यह हमेशा लड़ाइयों को उत्पन्न करता है। Many things will become simple if we start to communicate. अगर बहुत सी चीजें जो होंगी वह आसान होगी अगर हम बातचीत करना शुरू करें। We live our life on the basis of assumption how that person is. और हम अपने जीवन को इन ख्यालों के साथ जीते हैं कि अरे वो व्यक्ति तो ऐसा ही होगा शायद। But if you talk to that person, you understand and you that is not the thing. और अगर आप उस व्यक्ति से बात करें तब आप समझिए कि नहीं ऐसी बात तो नहीं थी। We overthink so many things. हम बहुत सी चीजों को ज्यादा And सोचते we हैं assume things. और हम फिर बात को मान लेते But we हैं don't talk about it. परंतु हम उसके बारे में बात नहीं करते The हैं। fifth thing is that we apply our past hurt into all the situations. और जो पांचवी है कि हम अपने पहले की जो चोटें हैं उनको हर जगह पर अप्लाई करते हैं। When you are with someone new, you are and something wrong happens, you are like, again this has happened. आप शायद किसी नए व्यक्ति के साथ हो और कुछ वैसा ही हो गया तो आप फिर से कहेंगे फिर से यही बात मेरे साथ होती है। We view at people with the lens of our past hurt. और हम लोगों को देखते हैं अपने पुराने जीवन के चश्मों से And we keep on fighting with them. और फिर हम उनसे लड़ते रहते हैं। That's why we need wholeness and freedom. इसीलिए हमें संपूर्णता और चंगाई की जरूरत है। The sixth thing is cold wars and silent treatment. और जो Cold wars and silent treatment. सिक्स्थ थिंग Yeah, sixth. जो छठवीं चीज है वह है हम आपस में एकदम शांत हो जाते हैं और एक दूसरे को शांति के साथ ट्रीट करते हैं। I really love this part. मुझे यह बहुत पसंद है। When I was in college, I always used to observe. और मैं जब कॉलेज में था मैं हमेशा इस बात को देखा करता था। So when people walk for lecture, जब लोग लेक्चर्स के लिए जाते हैं we always used to see the people walking in. और हम हमेशा देखते थे लोगों को अंदर चलते हुए अंदर आते हुए। And when we know that few friends from group are coming separately, जब हमें पता चलता था कि एक समूह के जो दोस्त हैं वह अलग अलग अगर आ रहे हैं we knew there is some war or fight happening. और हमें पता चल जाता था कि कोई लड़ाई हुई है। If the husband comes first and wife comes later, अगर पति पहले आता है और बीवी बाद में आती है we are like, is everything okay? हम पूछते क्या सब ठीक है? Because what we assume that there is cold war that is going on between them. क्योंकि क्या हम समझ लेते हैं कि वहां पर एक Cold war. there's a word for cold war in हिंदी। शीत युद्ध वहां पर चल रहा So है। शीत युद्ध चल रहा है वहाँ पे. कोल्ड वॉर चल रही है। On video call, वीडियो कॉल पर the daughter is not talking to mother. जो बेटी है माँ से बात नहीं कर रही है। The dad is not talking to father.
The dad is not talking to the son. Sorry. The dad is not talking to the son. पिता पिता से नहीं, पिता बेटे से बात नहीं कर रहा है. And then the siblings will be asking what happened. तो भाई बहन आपस में पूछते हैं क्या हुआ. Because where there are wars, there will be cold treatment. क्योंकि जहाँ कहीं वहाँ पर युद्ध है, वहाँ पर कई बारी एक शीत युद्ध भी चलता है. आप किसी को बहुत ही शांति के साथ ट्रीट करते हैं. And the last thing is, because there are wars, we always lack empathy on the other side. और जो आखिरी बात है वो यह है कि क्योंकि वहाँ पर युद्ध है, We lack empathy on the other side. और क्योंकि वहाँ पर युद्ध है, हम एक दूसरे के लिए उस प्रेम को भूल जाते हैं. We forget to show other person mercy and grace. हम दूसरे व्यक्ति को अनुग्रह और दूसरे व्यक्ति को दया दिखाने में चूक जाते We हैं. are very quick to receive from God, हम परमेश्वर से लेने में बहुत ही तुरंत होते हैं, but very slow to give to others. परंतु बहुत ही धीमे होते हैं दूसरों को देने में, Because it's all about you in that moment. क्योंकि वह सिर्फ आपके बारे में है उस क्षण में. So when we are having these selfish desires, तो जब हम यह स्वयं की इच्छाओं को जब इन सब बातों को लेकर चलते हैं, James says that we don't ask God. तो याकूब इस बारे में कहता है कि हम परमेश्वर से बात नहीं करते We हैं. don't want to trust God. हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहते We हैं. want to do things our own way. हम अपने आप से उन चीजों को करना चाहते We हैं. want to handle relationships our own way. हम अपने आप से उन रिश्तों को हैंडल करना चाहते हैं. And instead of peace, there is more fireworks. और वहां पर शांति की जगह बहुत ज्यादा पटाखे हैं. And because of these selfish desires, it leads to wrong praying. और क्योंकि वहां पर अब स्वयं की इच्छाएं हैं, वहां पर गलत प्रार्थनाएं आ जाती हैं. We pray with selfish motives. हम प्रार्थना करते हैं स्वयं की इच्छाओं की वजह And से, that's why our prayers don't get answered. और इस वजह से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं Because मिलता. there is selfishness that is hidden. क्योंकि वहां पर स्वयं केंद्रितता है जो छुपी है. That's why people are often at war. और इसीलिए लोग कई बारी इन लड़ाइयों में होते हैं. Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. कि जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वह स्वयं का इनकार करे और अपनी क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले. Have we really denied ourselves? क्या हमने अपने आप का इनकार किया है सच में? Or there is still selfishness that is ruling in our lives? और या फिर वहां पर अभी भी वह स्वयं की बातें हैं, स्वयं केंद्रिता है जो हमारे जीवन को चलाती है. The second source for all the wars and fights, जो दूसरा जो जड़ है सारी लड़ाइयों की, that is enmity with God. वह है परमेश्वर के साथ शत्रुता. So in James chapter 4 verse 4 to 5 he says, adulterers and adulteresses, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? Should I read in Hindi or translate? No, you're cool. fine. Okay. So this is the verse that says that because there is enmity with God, there is all force. और यहाँ पर इस बात को यह आयत हमें बताती है क्योंकि वहाँ पर एक शत्रुता है परमेश्वर के साथ. हमारे We are enemies with God. हम परमेश्वर से शत्रुता रखते हैं. And because we are enemies with God, there is all the internal and external wars that are और happening. क्योंकि हम परमेश्वर से शत्रुता रखते हैं, हमारी अंदरूनी और बाहरी रूप से हर जगह एक युद्ध चल रहा है. So why most of the time we are against God? क्यों बहुत सी बार हम परमेश्वर के विरुद्ध हैं? It is because of the hurt and the disappointment and the offense that has been caused by a situation or a person. या ज़्यादातर होता है उन चोटों की वजह से, उन दुखों की वजह से, उन परिस्थितियों में जो किसी व्यक्ति ने जिसमें हमें डाला हो. And because of these we start hating God. और इन सब बातों की वजह से हम परमेश्वर से नफरत रखना शुरू करते We हैं. start blaming God for all the bad things that has happened और to हम us. परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू करते हैं उन सारी बातों के लिए जो हमारे साथ हुई है. And then the world becomes a place for comfort for us. और फिर संसार जो है हमारे आराम की एक जगह बन जाती है. We start viewing God with the lens of hurt rather than the lens of truth. और हम परमेश्वर को देखना शुरू करते हैं उस दुख के नजरिए से, ना कि उस सच्चाई के नजरिए से. And slowly we start to develop friendship with the world. और फिर धीरे धीरे हम संसार से अपनी मित्रता बढ़ाने लगते हैं. Friendship always leads to love.
और जो यह दोस्ती है यह हमेशा प्रेम को उत्पन्न करती है। If we are started to become friends with the world, there will be a time we will start loving the world. अगर हम संसार के साथ अपनी मित्रता को शुरू करते हैं, एक समय आएगा जब आप संसार के साथ प्रेम करेंगे। So James mentions 3 enemies that we must not commune with to be enemies of God. और वहाँ पर याकूब जो है 3 शत्रुओं के बारे में बताता है जिनके साथ हमारी बातचीत नहीं होनी चाहिए ताकि हम संसार के मित्र ना बने। The first is the world itself. जो है पहली है जो संसार खुद में, It is the human society that is contrary and opposite to God. और यहाँ हम उन मनुष्यों की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध हैं, परमेश्वर के ख्यालों के विरुद्ध हैं। Any conduct, any belief that is against God's scripture or against God is the world. और कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा चाल चलन या ख्याल जो परमेश्वर के विरुद्ध है वह संसार का है। The world will always teach us that preferences are more important than principles. और जो संसार है वह हमेशा सिखाएगा कि हमारी इच्छाएं हमारे सिद्धांतों से बढ़कर हैं। He will say, you are hurt, no problem, don't talk to them. और वह कहेंगे कि अच्छा तुम्हें दुख पहुंचा है, कोई बात नहीं, तुम उनसे बात मत करो। You like that someone, don't go to God, it's okay, have your own way. और तुम्हें वह व्यक्ति पसंद है, परमेश्वर से मत पूछो, अपने आप चले जाओ उस बात पर। You don't have money, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, don't go to God. परमेश्वर के पास मत जाओ। That's how world influences preferences over principles. इस प्रकार से संसार जो है आपके इच्छाओं को आपके सिद्धांतों से ज्यादा बड़ा And बनाते when we हैं। are friends with the world, we become enemy of God. जब हम इस प्रकार से जब हम संसार के मित्र होते हैं हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। The second is the flesh. जो दूसरी बात है वह है आपका शरीर। The flesh makes us an enemy of God. वह है कि यह शरीर आपको परमेश्वर का दुश्मन बनाता है। The flesh is the fallen desires in a man. और शरीर से हमारा अर्थ है हमारी मनुष्य की गिरी हुई इच्छाएं। It always leads us away from God. यह हमेशा हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती It is हैं। these desires that war within us. यह इच्छाएं हैं जो हमारे अंदर इस युद्ध को उत्पन्न करती हैं। Have you been in that place? क्या आप उस जगह पर हैं That you don't want to do something but you still do. कि आप उस चीज को करना नहीं चाह रहे थे फिर भी आप उस चीज को करते हैं। You rise up again, आप फिर से खड़े होते but you हैं still do. परंतु आप फिर से उस बात को Because करते there is हैं a war that is happening in us. क्योंकि आपके अंदर एक युद्ध है जो चल रहा It's है। a war with flesh. वह है आपके शरीर के But साथ the एक moment we कुश्ती। start to have friendship with our flesh, we become enemy of God. पर जिस क्षण हम अपने शरीर के साथ इस मित्रता को निभाना शुरू करते हैं हम परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं। These desires are in direct conflict with the Holy Spirit. और यह जो इच्छाएं होती हैं पवित्र आत्मा के विरुद्ध होती हैं। And when these desires we follow, what happens is that no longer we follow the principles but preference. और जब हम इन इच्छाओं के साथ चलते हैं तो क्या होता है कि हम अब अपनी सिद्धांतों पर नहीं चल रहे हैं परंतु अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं। So if me and Srishti is having a fight, तो अगर मैं और सृष्टि लड़ रहे हैं the principle of God says that there should be unity. तो परमेश्वर का जो सिद्धांत है वो कहता है एकता होनी But चाहिए। if the flesh is actively working, परंतु अगर आपका शरीर उस समय पे कार्य कर रहा है he will say, how can she say that to you? You are elder to her. और वह कहेगी कि कैसी बात तुम्हें ऐसा कह सकती है, तुम मुझसे बड़े हो। And I'll be like, yeah, that is right. और आप कहेंगे हाँ ऐसा तो सही है। But when you're walking with the God and you're friends with God, और परंतु जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आप परमेश्वर के मित्र हैं God will say you have to make peace no matter what. और परमेश्वर कहेगा तुम्हें शांति को लेकर आना चाहे कुछ भी हो जाए। So when we submit to these sinful desires, it always makes us contrary or opposite to God. और जब हम इन अपनी इच्छाओं को समर्पित करते हैं यह हमेशा हमें परमेश्वर के विरुद्ध लेकर जाती हैं। In James chapter 4 verse 6 it says, therefore he says God resists the proud but gives grace to the humble. और याकूब उसका 4 उसकी 6 में लिखा है वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीन को अनुग्रह करता है। So how can you be an enemy against God? तो कैसे आप परमेश्वर के विरोध एक शत्रु बन सकते When हैं you become friends with the devil himself. जब आप उस शत्रु के साथ मित्रता करते हैं, When you become friends with his kingdom जब himself. आप शैतान के साथ और उसकी राज्य के साथ मित्रता करते हैं। And you know the number one weapon of Satan? आपको
पता है सबसे पहला जो हथियार शैतान आपके विरुद्ध चलाता है Pride. वह है घमंड. Pride is his number one weapon. घमंड जो है वो उसका सबसे पहला हथियार है आपके So the खिलाफ. moment you start become prideful or there is pride in you, you start become enemy of God. तो जिस क्षण आपके अंदर घमंड आता है, आप अपने ऊपर घमंड करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं. So are we prideful in any area of our life? क्या हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में घमंडी हैं? We might be declaring war against God. हम परमेश्वर के विरुद्ध एक युद्ध को वहां पर घोषणा कर रहे होंगे. Because of these three sources, it's difficult for a person to be at peace within themselves, with others, and with God. और इन तीन सूत्रों की वजह से, इन तीन जड़ों की वजह से एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है अपने आप में शांति पाना, परमेश्वर के साथ शांति पाना और दूसरे लोगों के साथ शांति को Three मानना. sources: तीन जड़ें: selfish desires, स्वयं केंद्रित की ख्याल, enmity with God, परमेश्वर के साथ शत्रुता and pride. और घमंड. But we are like, is there a solution to all these wars? पर हम सोचते हैं कि क्या वहां पर कोई हल है इन सारी युद्ध Will का? ever these fights stop? क्या कभी भी ये लड़ाइयां रुकेंगी? There is an answer in the Bible, बाइबल में इसका जवाब है and the answer is yes. और उसका जवाब है हाँ. So this morning I'm going to give you three solutions with which we can stop fighting. और आज की सुबह मैं आपको तीन सुझाव हल देना चाहता हूँ जिनके द्वारा यह लड़ाइयाँ रुक सकती हैं. The Bible says, James says, he gives grace. और याकूब इस बात को कहता है कि वह अनुग्रह देता है. We are nothing without his grace. हम उसके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं हैं. And with his grace we can end wars. और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सारी लड़ाइयों को खत्म कर सकते हैं. So if you want to end wars, तो अगर आपको सारी लड़ाइयाँ खत्म करनी I'm going है, to give you 3 steps. मैं आपको 3 स्टेप्स देना चाहता And if you हूँ. follow those 3 steps, और अगर आप उन 3 सुझावों को मानते हैं, there will be an end to fights and wars. और फिर वहां पर आपकी युद्धों का, आपकी लड़ाइयों का अंत होगा. The first step is submitting to God. जो पहला स्टेप है, जो पहला सुझाव है, वह है परमेश्वर को समर्पित करना. अपने James आप says, को. therefore submit to God and resist the devil and he will flee from you. और याकूब कहता है कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो और वह शैतान का सामना करेगा और शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा. So when you submit to God, तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के अधीन होते you हो, submit to his authority, आप उसके अधिकार के नीचे you होते हो, submit to his ways, आप उसके रास्तों के अधीन होते हो, and you submit to his principles. और आप उसके सिद्धांतों के अधीन होते हो. These all three work together in submitting to God. और यह तीनों जो है मिलकर परमेश्वर के अधीन होने में सहायता करती हैं. Unconditional surrender to God is the way to victory. और जो है बिना किसी शर्त का जो अधीन होना होता है परमेश्वर के लिए, वह एक विजय की ओर आपको लेकर जाती है. Submission is saying, not my will but your will be done, God. अधीन होना इस बात को कहना है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो. In every fight, in every war, हर एक लड़ाई में, हर एक युद्ध में when we seek him, जब हम उसे खोजते हैं, the wars will begin to cease. जो लड़ाइयाँ हैं वह खत्म होने लगेंगी. And we know that it's the devil that always comes to create these wars. और हम जानते हैं कि वह शैतान है जो हमेशा आता है इन लड़ाइयों को उत्पन्न करने. But the more we submit to God, परंतु जितना हम परमेश्वर के अधीन होते he हैं, gives us grace to resist the devil. वह हमें अनुग्रह देता है उस शैतान के विरुद्ध. And when we resist the devil, और फिर जब हम उस शैतान से दूर रहते हैं, the wars will come to stop. वह लड़ाइयाँ हमारे जीवन में खत्म होने लगेंगी. We had our online connect group this week. हमारे इस सप्ताह में ऑनलाइन कनेक्ट ग्रुप था. And we were discussing about the principles of God. और हम परमेश्वर के सिद्धांतों के बारे में बातचीत कर रहे थे. And there's something very beautiful that Dr. Joanna told us. और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर चीज थी जो डॉक्टर जोहाना ने हमसे बांटी. She said that yes, we have to follow the principles. और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें सिद्धांतों को मानना है. But if we not take a stand and
put an effort, it will never happen. परंतु जब तक हम उस बात के लिए खड़े नहीं होंगे और अपनी तरफ से एक जोर नहीं डालेंगे तब तक कुछ कार्य नहीं हो पाएगा. So we need to take a stand against the devil and his principles. तो हमें वहां पर खड़े होने की जरूरत है शत्रु के, शैतान और उसके सिद्धांतों के विरुद्ध. We have to reject all the preferences of the world. हमें संसार की सारी पसंद को मना करके ठुकराना होगा. And the devil will flee. और जो शैतान है फिर भाग जाएगा And वहां the fight will से. come to an end. और जो लड़ाई है वह खत्म हो सकती Whether है. it is a fight within us, चाहे वो लड़ाई हमारे बीच में हो, with one another, एक दूसरे के बीच or में हो, with God. और या फिर परमेश्वर के विरुद्ध हो. the devil always wants us to be at war with God. पर शत्रु हमेशा चाहता है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध एक लड़ाई को लड़ें. Because where the lordship of God is not there, क्योंकि जब वहां पर परमेश्वर की प्रभुता नहीं होगी, there is always chaos and destruction. वहां पर हमेशा जो है एक बहुत तबाही रहेगी. The second step that we can follow is draw near to God. जो दूसरा जो हम कदम उठाएं अपने जीवन में वह है परमेश्वर के करीब आना. We have to get intentional to have a time with God. हमें एक अपने आप से कोशिश करके परमेश्वर के इस वचन के साथ समय को बिताना है. No relationship develops just as it is. और कोई भी रिश्ता अपने आप से ही नहीं बनता है. We have a love relationship with God. हमारे अंदर एक प्रेम का रिश्ता है परमेश्वर के लिए. And love requires time and effort. और प्रेम जो है वह समय और कार्यों को वहां पर होना जरूरी है. When we get intentional about spending time with God, जब हम अपने आप से इच्छा करते हैं परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, reading more of His Word, spending time in prayer, और उसका वचन और पढ़ना और प्रार्थना में समय बिताना, the Lord will draw near to us. परमेश्वर हमारे करीब आता है. And when the Lord draw near to us, और जब परमेश्वर हमारे करीब आता है, what He does, क्या वह करता है? it's that He will cleanse our hands, वह सबसे पहले हमारे हाथों को साफ करता He है. will purify our hearts. वह हमारे हृदय को साफ करता है. Because God knows that this is the reason that is making all fights happening. और क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यही वह वजह है जिससे यह सारी लड़ाइयाँ होती हैं. Do we know that when we spend time with someone, we start to become like them? और क्या आपको पता है कि जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं हम उनके समान बनते जाते We हैं. pick up their slang. हम उनकी बातें उठा लेते हैं. We start to like the food they like. और हम उन जो खाना उनको पसंद है वहाँ पसंद We करने start लगते to हैं. like to go the places they go. और हमें उन जगहों पे जाना पसंद होता है जहाँ उनको जाना पसंद होता है. And I have observed this with husband and wife. They begun to look similar और मैंने ये पति पत्नी में देखा है कि वह एक जैसे दिखने भी लग जाते हैं. because they are spending so much time with one another. क्योंकि वह बहुत समय आपस में गुजारते हैं. That is what God wants with us. और यही परमेश्वर चाहता है हमारे साथ हो. He wants to draw closer to us. वह हमारे करीब आना चाहता है. But initiative is with us. परंतु जो शुरुआत है वह हमसे होगी. He said, I have loved you first. उसने कहा मैंने तुम्हें पहले प्रेम He किया. gave His son for us first. उसने पहले अपना पुत्र हमारे लिए But दिया. now it's time for us to take a step. परंतु अब हमारी बारी है कि हम उस कदम को उठाएं. Come closer to Him. उसके और करीब आएं. Get intentional about spending time और with Him. आप जानबूझकर उसके साथ उस समय को You know, बिताएं. the Bible says आपको पता है बाइबल क्या that कहती God है? desires in the presence of His people. और कि परमेश्वर की इच्छा है कि वह अपने लोगों के बीच में उपस्थित हो. The moment you show up, जिस क्षण आप आते हैं He's so happy. वह बहुत खुश होता है. You don't have to say any words. और आपको और कहने की जरूरत नहीं You don't have होती. to say, My Father in heaven, or hallowed be thy name. और आपको यह कहने की जरूरत नहीं कि हे पिता जो आसमान पर है, He's a Father. वह पिता है. The moment He sees you, वह जिस क्षण आपको देखता है His heart full of joy. और उसका हृदय आनंद से भर जाता I है. tried this. मैंने ऐसा करने की कोशिश करी. I tried this one time. मैंने एक बार ऐसा किया. I said, Lord, I'm going to take out time just for you. और मैंने ऐसा कहा कि प्रभु मैं समय निकालने वाला हूँ सिर्फ तेरे लिए. Not asking my needs, not praying for anything. और मैं किसी बात के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, कुछ मांगूंगा नहीं. I just went there and I just sat. और मैं बस वहां पर गया और बैठ गया. And it was so awkward for me. और मेरे लिए तो बहुत अजीब था Because I have never done this. क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया था. Giving time only to Him. सिर्फ समय देना परमेश्वर को. But the moment I closed my eyes, परंतु जिस क्षण मैंने अपनी आंखों को बंद किया I could feel that there is a figure who is happy. और मैं ऐसा महसूस कर पाया कि वहां पर एक ऐसी कोई चीज है जो बहुत खुश है. A figure who is happy, a person. एक व्यक्ति है जो बहुत खुश है.
And the moment that happened, there was a joy and love surrounding और me. जिस क्षण ऐसा हुआ मेरे अंदर भी एक आनंद भर I want to गया। encourage you, try that. मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा ऐसा करें आप। Be there just for him, जाए वहां सिर्फ उसके लिए, not for anything. और किसी चीज के लिए Your नहीं। life will change. आपका जीवन बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So God cleanses us and purifies our heart when we draw closer to तो him. परमेश्वर हमें साफ करता है और हमारे हृदय को पवित्र करता है जब हम उसके करीब आते हैं। Bible says, search me, O God, know my heart, try me and know my बाइबल anxieties. इस बात को कहती है कि हे प्रभु मेरे मन को जांच, मेरे हृदय को जांच और मेरी सारी परेशानियों को जांच। Why does God want to do that? क्यों परमेश्वर इस बात को करना चाहता है? Because God wants to make us like him. क्योंकि परमेश्वर हमें अपने समान बनाना चाहता है। The moment you go and spend time alone with him, जिस क्षण आप जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसके साथ समय he बिताते will always हैं, lead us to repentance. वह हमेशा हमें माफी की ओर लेकर जाएगा। Because he wants certain things to go out from our lives. क्योंकि वह चाहता है कि कई चीज हमारे जीवन से बाहर जाएं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, make every effort to live in peace with everybody and to be holy. बाइबल इस बात को कहती है कि तू अपनी सारी क्षमता का इस्तेमाल करना कि आपस में शांति हो और हर एक चीज पवित्र ठहरे। When we are full of self, we don't make an effort to make a peace. जब हम अपने आप से स्वयं की बातों से भरे होते हैं, हम वहां पर कोई कोशिश नहीं करते हैं शांति को बनाने But की। the disciple will make an effort to be at peace with everyone. परंतु एक चेला जो है वह हर किसी के साथ शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। Peacemakers are called the sons of God. शांति जो बनाए रखते हैं वह परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। You may dislike someone. आपको शायद कोई पसंद नहीं होगा, Maybe they hurt you in some or the other way. शायद उन्होंने आपको किसी ना किसी रूप से चोट पहुंचाई होगी। Remember, you are the son of God. आप याद रखें कि आप परमेश्वर की संतान हैं। They might not come to you. वो शायद आपके पास नहीं आएंगे, You go to them. आप उनके पास जाएंगे। Ask forgiveness from your behalf. आप अपने स्वरूप से माफी को And at मांगे the end, they will also forgive. और आखिर में वो भी आपको माफ And करेंगे there will be peace. और वहां पर शांति होगी। The third step that you can follow जो तीसरा कदम है जो आप जिस पर चल सकते हैं, is humbling yourself in the sight of the Lord. और वह है अपने आप को नम्र करना परमेश्वर की नजर में। Pride can never stand in the presence of God. घमंड कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता। And because of pride, there is lot of wars. और क्योंकि वहां पर घमंड है, वहां पर बहुत सी लड़ाइयां So if होती we want हैं। to stop the wars, तो अगर आपको लड़ाई को रोकना है, we have to humble ourselves in the sight of the Lord. हमें अपने आप को परमेश्वर के नजरिए में नम्र करना है। Because when we submit to God, it's not only about inward, it's always also about outward expression. और यह सिर्फ अंदरूनी बातों के लिए नहीं है, यह आपके बाहरी बातों के लिए भी कि आप कैसे व्यवहार करते हैं। James says that you have to truly mourn for our sins. और याकूब इस बात को कहते हैं कि तुम्हें बहुत ही सही रूप से अपने पापों के लिए रोना गिड़गिड़ाना है। And when we truly repent in the presence of God and we mourn, God starts to humble us. और फिर जब हम सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों को मानते हैं, उनके लिए रोते गिड़गिड़ाते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। The Bible says that godly sorrow brings repentance that leads to salvation. और बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर का जो यह दुख है, परमेश्वर के लिए जो यह रोना है, वह हमारे पापों की क्षमा को हमारे लिए लेकर आता है। Godly sorrow will always bring repentance. यह जो परमेश्वर के सामने जो रोना है, यह हमेशा आपके लिए क्षमा को लेकर आएगा। The moment I got saved, जिस क्षण में बचाया गया था, before that me and my sister used to fight like anything. उससे पहले मैं और मेरी बहन बहुत ज्यादा लड़ते थे। We used to curse one another. हम एक दूसरे को गाली दिया करते थे। We used to say a lot of bad things to one हम एक another. दूसरे को बहुत बुरी बुरी चीजें कहा करते थे। All our friends who know us from childhood have a memory of that bad thing that we used to do. one another. हमारे जो जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने हमें बचपन से देखा है, उन्हें उन चीजों की याद है अभी तक। But the moment I got saved, परंतु जिस क्षण में बचाया गया and when I started drawing near to God, और फिर मैं परमेश्वर के करीब आने लगा, God humbled me. परमेश्वर ने मुझे नम्र किया। And then God put a godly sorrow in me. और फिर परमेश्वर ने मेरे अंदर अपने उस Godly sorrow. I'm getting the right word for it.
ईश्वर ये दुख को मेरे अंदर भरा। And when that started to happen in me, और फिर जब ऐसा मेरे अंदर होने लगा, God showed me the areas and He said, son, this is where you have to change. परमेश्वर ने मुझे उन सारी मेरे जीवन के हिस्सों को दिखाया और कहा कि हे मेरे पुत्र ये सही नहीं। And He said, you need to apologize to your sister. और उन्होंने कहा कि तुझे अपनी बहन से माफी मांगने की जरूरत है। It is very easy to demand forgiveness, और एक बहुत ही आसान होता है माफी को मांगना, but it is very easy to say that, will you please forgive me? It is very easy to say, will you forgive me? और यह बहुत आसान ऐसा भी होता है कि आप किसी से कहें कि क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। That is what godly repentance done in you. और यही परमेश्वर की जो दुख है जो आपके अंदर करता है। Nothing to boast about myself. मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, But if I want to be at peace with my sister, परंतु अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन और मेरे बीच में शांति हो, I need to submit to God. मुझे परमेश्वर के अधीन होना है। I need to humble myself. मुझे अपने आप को नम्र करना है And I have to draw near to God. और मुझे परमेश्वर के करीब जाना है। If that doesn't happen, अगर ऐसा नहीं होता है there always will be war. तो वहाँ पर हमेशा एक लड़ाई रहेगी। And when we humble ourselves before God, और जब मैं अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करता हूँ, God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। If we obey these 3 steps, जब आप इन 3 कदमों पर चलते हैं, all the wars will stop. सारी लड़ाइयाँ आपके जीवन में रुक जाएंगी। When these wars and fights stop, जब यह लड़ाइयाँ रुकती हैं, the brokenness and bondage वह जो टूटापन है और जो बंधन है, will turn into wholeness and freedom. वह संपूर्णता और आजादी में बदल जाएगी। But you may say that this is not possible. पर आप कहेंगे कि ऐसा तो होना नामुमकिन है। How can wars end? कैसे इन युद्धों का अंत हो सकता है? How can a man be at peace? कैसे एक मनुष्य शांति में हो सकता How है? can he be at peace all around? और कैसे उसके जीवन में हर रूप से शांति हो सकती I know है? with God it is possible. अब मैं जानता हूँ परमेश्वर के साथ ऐसा हो सकता है, But how can it be possible with me? परंतु यह मेरे लिए कैसे हो सकता है? Let me give you an example of a man who did it. और मैं आपको एक मनुष्य का उदाहरण देना चाहूंगा जिसने ऐसा किया। Other than Jesus. यीशु के अलावा। Turn with me to 2 Samuel chapter 7 verse 1. आप मेरे साथ आए दूसरा शामुएल और उसका 7 और उसकी पहली आयत। It says that King David was living in his palace and the Lord had given him peace from all his enemies around him. और यह इस प्रकार से कहते हैं कि जब राजा अपने भवन में रहता था और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। There is a man who made it possible. वहां पर एक मनुष्य था जिसने इस बात को करके दिखाया। It's possible even for you and me. तो आपके लिए और मेरे लिए भी यह संभव If है। you see the life of King David, अगर आप राजा दाऊद की जीवन को देखें, you will always see these 3 steps at play. आप हमेशा देखेंगे यह 3 कदमों पे वह चल In रहा all था। the psalms that he writes, हर एक भजन जो वह लिखता है, he will always see that he's submitted to God. आप देखेंगे कि वह परमेश्वर को समर्पित है। You will always see that he's drawing near to God. आप देखेंगे वह परमेश्वर के करीब आ रहा है। You will always see that he's humbling himself before और आप God. देखेंगे कि वह अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर के He's आगे। always repenting. वह हमेशा माफी मांगता And है at the result of it, और उसका जो निर्णय होता है, Lord lifted him up. परमेश्वर उसे खड़ा करता He है। gave him peace all around. उसने उसे शांति दी हर एक बात में। In Proverbs chapter 16 verse 7 says, और नीति वचन उसका 16 उसका 7वीं अध्याय इस बात को कहता है, when a man's ways please the Lord, when a man's ways please the Lord, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, he makes even his enemies to be at peace with him. तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। You know, the moment I was doing my Bible study on this, जब मैं अपनी बाइबल स्टडी कर रहा था इस बात के ऊपर, and the Lord took me to this ending scripture, और परमेश्वर ने मुझे इस अंतिम वचन पर लेके गया, I literally had tears in my eyes. मेरी आंखों में आंसू थे। I was so joyful. मैं इतना आनंदित हुआ। I said, Lord, you can make it happen. मैंने कहा प्रभु आप ऐसा कर सकते हो, But we have to follow the 3 steps. परंतु हमें उन 3 कदमों पर चलना है, उन 3 बातों पर चलना है। when we follow these 3 steps, जब हम उन 3 बातों पर चलते हैं, we will walk in godly ways. हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, We will walk in the principles of God. हम परमेश्वर के सिद्धांतों को करते हैं। And when we do that, और जब हम ऐसा करते हैं, we will please the Lord. हम परमेश्वर को आनंदित करते हैं। And when we please the Lord, और जब हम परमेश्वर को मनाते we हैं, will make
everyone to be at peace with us. वह ऐसा कर सकता है कि हर कोई आपके साथ शांति में रहे. The Bible said he will set a table before the enemies with us. बाइबल इस बात को बताती कि वह तेरे शत्रुओं के आगे मेज को बिछाता है. Who didn't like you before जो आपको पहले पसंद नहीं करते थे will desire your goodwill. वह आपको और चाहेंगे. Who were plotting against you वह लोग जो आपके विरुद्ध कार्य कर रहे थे will show you peace. वह आपको शांति को They दिखाएंगे. will show you favor. वह आपको फेवर दिखाएंगे. Why? क्यों? Because your ways have pleased the Lord. क्योंकि आपके चाल चलन ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है. And the Lord has made you at peace with your enemies. और फिर परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं से मेल कराता I है. just want to leave you with this question. मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ. Are we making sure our ways are pleasing the Lord? क्या हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि क्या हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावता हो? Is it true? क्या यह सच है? Are your ways are pleasing the Lord? क्या आपका चाल चलन परमेश्वर को भाता है? If it isn't, अगर ऐसा नहीं है, it's time to repent. यह समय है कि हम माफी मांगे. It's time to come back to the Lord. यह समय है कि हम परमेश्वर के पास वापस आएं. Who wants to spend their time fighting one another कौन चाहता है एक दूसरे के साथ लड़ते रहना when you can be at peace? जब आप शांति में रह सकते हैं? Only when our ways please the Lord, there is peace. जब हमारा चाल चलन परमेश्वर को भाता है वहां पर मेल और शांति होती है. May you all be blessed and encouraged with this word. आप Amen. सब आशीषित हो इस वचन के द्वारा. आमीन.